क्या था? The question says each of the four species in this question are isolated and gaseous. Which species is not planar? So BF3 is a planar molecule because we have made the bonding of BF3 in defying octet rule. It has 3 bonded pairs and 0 lone pairs, boron. So it must be a planar shape. CH3 positive ion. If you have to draw CH4, right? CH4 is a tetrahedral in shape because carbon has 4 bonded pair and 0 lone pair. However, it has only 3 hydrogen atoms. So if we just remove one hydrogen atom, carbon must be left with one unpaired electron. If it has unpaired electron, if I ask you what should be the angle of this molecule, this is basically known as radical. Radical is a species, I'm telling you the definition of radical, a species that has unpaired electrons or one unpaired electrons, or it can be more than one unpaired electron, or you can just say it has unpaired electron, right? So that is a radical. If I ask you what should be the approximate bond angle of this species or this methyl, this is actually known as methyl radical. If I just write it like this, it would be called as methyl radical. And we will going to study about it in organic chemistry. But what if I just ask you the bond angles of this methyl radical? Approximate bond angles, because we haven't studied anything with 3 bonded pairs and not just one lone pair, it is half a lone pair, right? So if any central atom has 4 bonded pairs and 0 lone pair, we know that the shape is tetrahedral and the bond angles are 109.5 degrees. But what if we just leave one lone pair over it? हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं. If somehow we are just preparing this molecule with one lone pair, so you know that now it has 3 bonded pair and one lone pair. The shape would be trigonal pyramidal and the bond angle should be equal to 107 degrees. Right now it do not have in methyl radical, it does not have one lone pair but just one extra electron. So इसका एंगल कितना होना चाहिए? सिर्फ रेंज बता दो मुझे. It should be smaller than 109.5 degree, right? As per the Vesper theory, अगर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है. अगर वन बॉन्डेड पेयर खत्म करके वन लोन पेयर लगाया तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया 107 डिग्रीज के. अगर हमने पूरा लोन पेयर नहीं लगाया, इफ यू हैव जस्ट लेफ्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड एंगल्स कम तो होंगे ना, बट वो कम होके 107 डिग्रीज नहीं होंगे. दे शुड बी समवेयर इन बिटवीन, ग्रेटर देन 107 बट लेस देन 109.5 degrees. Right? Make sense? It should be greater than 107 degrees. Let's say you can write its value as 108 degrees. You can also write this value as 108.5 degrees or 109 degrees. Right? But what if I prepare, what if I say it does not have any lone, मतलब it does not even have any unpaired electron. मतलब ये जो unpaired electron था, if somehow I remove this unpaired electron and then I'll be just left with one positive charge on this carbon atom. So this is CH3 positive. So now it has 3 bonded pairs and 0 lone pair. So its shape would be planar shape with the bond angles of 120 degree. बात समझ आती है वाली? वन इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा वो बात की बात है, वो ऑर्गेनिक में देखेंगे. अभी है बस वन इलेक्ट्रॉन. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वो किस तरह से आएगा वो हम बाद में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. राइट? जी रामी. रामीन आस्किंग समथिंग. इसमें एक लोन पेयर है CH3 पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कोई भी लोन पेयर नहीं है. अगर पॉजिटिव चार्ज आए मतलब एक तो बॉन्ड नहीं है इसमें, एक बॉन्डेड पेयर कम है. अगर बॉन्ड नहीं होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर वो उसको भी रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा. तो मतलब कोई लोन पेयर नहीं है. कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 of which are participating in bonding and the one electron is actually removed. That's why it has a positive charge. ठीक है, समझ आई बात?
तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, ये वाली, और अगर ये फ्री रेडिकल होगा ये वाला, और टेट्राहेड्रल तो आपको पता ही है, और पिरामिडल भी आपको पता है। ओके, so CH3 with positive charge has no lone pair but 3 bonded pair. So it means its shape is planar. What about C2H4? C2H4 is ethene. If you make the structure of ethene, the bonded angles are in between the carbon atoms, right? Carbon is making the bonds. So the central atom are these two carbon atoms. If I number them 1 and 2, so if you see the first carbon atom, it has 3 bonded pair, 0 lone pair, whereas the second carbon atom also have 3 bonded pair, 0 lone pair. So about both of the carbon atom, the shape should be planar. So this complete molecule is a planar shape. So again, this is a planar. But you already know about ammonia. If you make the dot and cross diagram of ammonia, ammonia has 3 bonded, nitrogen atom has 3 bonded pair and 1 lone pair. So it has 3 bonded pair, 1 lone pair, so its shape is pyramidal, not planar. So our answer should be option D, because he was asking you to find a shape which is not planar. So ammonia is not planar. No, you do not have to make this structure. In case you have just identified by just drawing the structure in your mind that whether that particular central atom must have 3 bonded pair, 1 lone pair, तो आप डायरेक्टली बता दें, ये तो आपको याद हो जाता है, जैसे अमोनिया का याद हो गया होगा अब तक आपको, इसका BF3 का याद हो गया होगा, तो ऐसा ऐसा याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। सही है सामरा, समरा। What does the triangle show? Triangle shows the bonded pair. ये जो wedge बनाया हुआ है ना, wedge shape, this shows that this bond is coming out of the page, and the dotted line shows the bond is going into the page. That's what we have been discussing for the past 2 classes. I hope you were there. Done? आगे बढ़े। चलो, question 39 and question 26. I am leaving you as your homework. Question 37. Question 37 is saying in this question, methyl group CH3 is represented by Me. So in order to make simplified structures, तो वो CH3 लिखने के बजाय उसकी जगह Me लिखेगा। Trimethylamine. Trimethylamine is a compound where it has 1 nitrogen atom, और उसके साथ जो है ना, we have 3 Me3. Me is basically CH3. So basically it has 3 CH3 attached to it. So instead of making CH3, is just making, is just writing Me instead of CH3. राइट, एंड इट्स शेप शुड बी पिरामिडल। इसने इन्वर्टेड पिरामिडल बनाया हुआ है सारे ऑप्शंस में, तो मैंने भी इन्वर्टेड बना दिया भाई, और इसने 2 लाइन डॉटेड से बनाई हुई है, तो इट्स ओके, बना सकते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लेना है इसका? ये तो मैं PDF अपलोड कर देता हूँ ना, चलो ले लो। चलें आगे। अच्छा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ट्राइमिथाइलामाइन, इट हैज टू बी अ ट्रिगनल पिरामिडल। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं दिखाया हुआ, बट ऑब्वियसली होगा लोन पेयर, तभी तो पिरामिडल शेप बन रहा है। तो ABCD में इसमें सारे ऑप्शंस में ही करेक्ट बनाया हुआ है, तो इसके बेसिस पे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ प्लेनर इन शेप। ठीक है, और ट्रिगनल प्लेनर आप किस तरह से बना सकते हो? ट्रिगनल प्लेनर आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे ऑप्शन ए में बना हुआ है और ऑप्शन सी में बना हुआ है। बी में जो इसने शेप बनाया हुआ है वो तो पिरामिडल बनाया हुआ है ना, दिस इज नॉट अ ट्रिगनल प्लेनर शेप। प्लेनर याद है ना कैसे बनाया था? तो बी और डी में जो BF3 बना हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी और डी हटा देंगे हम फिर। अभी जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें बेसिकली क्या हुआ है, उसमें व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एक्चुअली मेड अ बॉन्ड बिटवीन दिस ट्राइमिथाइलामाइन,
जिसमें नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है बोरॉन के साथ, मतलब बोरॉन ने नाइट्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब अगर हम बोरॉन और नाइट्रोजन के बॉन्डेड पेयर्स देखें और लोन पेयर्स देखें, तो अब कहानी डिफरेंट हो गई है ना। If we just consider nitrogen as a central atom abhi, so if we see the bonded pairs of a nitrogen, so it has 4 bonded pairs and there is no lone pair left. अब नाइट्रोजन ने बोरॉन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाया होगा, आपको इतना आइडिया है, ये हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था नाइट्रोजन और बोरॉन का, NH3 और BF3 वाला। पर लेट से अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये डेटिव बॉन्ड है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, you just have to count the bonded pairs of nitrogen. There are 4 bonded pair now and 0 lone pair. So the shape about the nitrogen atom should be a tetrahedral shape. But if you see the boron atom as a central atom, क्योंकि boron के about भी तो angles बन रहे हैं. Now if you see the boron atom as a central atom, now boron has 4 bonded pair and 0 lone pair. So the shape about boron should also be a tetrahedral shape. तो दोनों के about tetrahedral shape बनेगा. अब अगर हम ऑप्शन डी में देखें, हमने ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया है, बी और डी। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में बोरॉन के अबाउट टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनाया हुआ, वो प्लेनर शेप बनाया हुआ। इफ यू जस्ट सी ऑप्शन ए क्लोजली, तो बोरॉन के अबाउट ही इज मेकिंग अ प्लेनर शेप, नॉट अ टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप बनना चाहिए ना, 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं उसके। तो बोरॉन के अबाउट भी टेट्राहेड्रल शेप होगा और नाइट्रोजन के अबाउट भी। अगर हम बोरॉन को अलग से देखें तो वो टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए, टेट्राहेड्रल आ रहा है यहाँ पे डी में। एक्चुअली हमें सी चूज करना पड़ेगा ना, तो सी में देख लेते हैं। इफ यू सी अबाउट बोरॉन, द शेप शुड बी टेट्राहेड्रल, जो कि है टेट्राहेड्रल। ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन के अबाउट देखेंगे तो शेप शुड बी टेट्राहेड्रल, जो कि टेट्राहेड्रल है लेकिन बस इन्वर्ट हुआ हुआ है, उल्टा टेट्राहेड्रल है। तो है तो टेट्राहेड्रल ना। समझ आती है बात ये वाली? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। जब 4 बॉन्डेड पेयर्स होंगे तो शेप टेट्राहेड्रल होगा। हाँ, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं अगर उस सेंट्रल एटम के, तो वो शेप टेट्राहेड्रल ही बनाएगा। कोई भी एटम हो, आप कहोगे भाई नाइट्रोजन कब से 4 बॉन्ड बनाने लग गया, बनाता है, डेटिव बॉन्ड बनाता है। आप कहोगे कि बोरॉन कब से 4 बॉन्ड बनाने लग गया, इसने बनाए हुए हैं तो अभी मानना पड़ेगा बनाए हुए हैं। चलिए भाई, मूविंग ऑन। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज डायपोल मोमेंट्स। अब ये रिलेटिवली बड़ा न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव बीन स्टडीइंग सो फार। अब इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना भी नहीं है। केमिस्ट्री से रिलेटेड डायपोल मोमेंट की क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या होता है, बस सरफेस स्टडी करनी है इसकी, वही करेंगे। जो जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे। अब डायपोल मोमेंट्स, अगर फिजिक्स में इफ यू रिकॉल द वर्ड मोमेंट, तो मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, राइट? यही होता है ना मोमेंट। इफ यू हैव अ पिवट एंड इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस beam which is pivoted at the center, so the distance from the pivot to the force when multiplied by the force, so this gives you the moment, or this is also known as turning effect, right? तो कुछ ऐसा ही मोमेंट है यहाँ पे भी, बट आपने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, हम इसकी कोई कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली whenever we have two bonded atoms like hydrogen and chlorine, they are bonded together to form a covalent bond. So chlorine is more electronegative than hydrogen. And do you guys remember what electronegativities are? Electronegativity is the pulling power of an atom to pull the electron towards itself. If you recall the Pauling's electronegativity values, so Pauling electronegativity values tells us that which atom is more electronegative.
Any atom that is more electronegative, it means that has more power to pull the electron towards itself. If you see the electronegativity of chlorine, it is 3 and electronegativity of hydrogen is 2.1. And on the basis of electronegativities, we established in the first classes of the chemical bonding that if sodium has an electronegativity value of 0.9 and chlorine has an electronegativity value of 3, it means a chlorine atom will snatch the electron from the sodium atom. And chlorine will get a charge of -1 and sodium will get a charge of +1. Why? Because there is a greater electronegativity difference between them. However, when a hydrogen atom is going to make a bond with a chlorine atom cannot snatch the electron of the hydrogen atom because hydrogen has a relatively higher electronegativity value as compared to sodium. So it is very difficult for a chlorine atom to just take the electron of the hydrogen. However, they will make a covalent bond between them. But this shared pair of electron will stay more towards chlorine atom. Why? Because their electronegativity values are not equal. So chlorine has a greater pulling power, but hydrogen is not giving up on its electron. Sodium has given up on its electron. So that's why chlorine has taken its electron completely. That's why it has a complete negative charge. These charges over sodium and chlorine are known as complete charges because sodium atom has lost its electron and the chlorine atom has gained its electron. So these charges are complete charges. However, if you see any covalent molecule like hydrogen chloride, the shared pair of electron will anytime will stay more towards chlorine atom because their pulling power is unequal. Chlorine has a greater pulling power. So what do you think? The shared pair of electron should stay towards the atom which has a greater pulling power. And this pulling power is basically known as electronegativity. So instead of saying pulling power again and again, I would like to call it electronegativity. Chlorine has a greater electronegativity than hydrogen. So the shared pair of electron will stay more towards chlorine atom. Does it make sense or not? If we see a chlorine molecule, here two chlorine atoms are bonded with each other. So it means both of these chlorine atoms have same electronegativity values. So they have same pulling power of electrons. So their shared pair of electrons should always stay in the center between the two atoms. The shared pair of electron between these two chlorine atoms should stay at the center. However, in the hydrogen chloride molecule, shared pair of electron will stay more towards the chlorine atom because it has a higher or greater electronegativity. अच्छा, जब क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था फ्रॉम सोडियम तो इट हैज अ चार्ज ऑफ -1 but chlorine is trying to gain the hydrogen's electron but it is not successful. However, it is keeping the electron more towards itself. So there is a negative charge over this chlorine atom in a molecule of hydrogen chloride. But this negative charge is not a complete negative charge just like in sodium chloride. So we call this negative charge as partial negative. We can just write it like this: partial negative or partial positive. Partial means incomplete negative or incomplete positive. So chlorine will have a partial negative charge and hydrogen will have a partial positive charge in a molecule of hydrogen chloride. So these charges are partial charges. Or another word for partial is incomplete. These are incomplete charges. Getting my point? बात समझ आई क्या है partial charges? And whenever any molecule have two oppositely charged ions, see, a sodium ion has a positive charge, chloride ion has a negative charge, तो वो उसके ऊपर है ना. But in this, if any covalent molecule have two charges over it, one negative and one positive, these two charges, two partial charges, are called as dipoles. इनको हम कहते हैं dipole. These are known as dipoles. Ammon, Cl2 is also a covalent molecule, right? Do you think it should have a partial charge? Do you think it should have a dipole? Because this shared pair of electron is staying at the center. So it is not closer to either of the chlorine atoms. So it does not have dipoles. However, HCl molecule, whenever a covalent bond is formed between the bonded atoms which have a electronegativity difference between them, so there will always be a dipole. And the partial negative atom would be the one which has a greater electronegativity, and the partial positive atom would be the one which has a lesser electronegativity.
right? Data booklet will not be provided in the exam 2025, but this data booklet is for the session 2025. What do I mean by this? This data booklet is basically for 2025, 2026 and 2027. मतलब ये जो आपकी 3 सीरीज आने वाली है ना कमिंग ईयर्स की, A2 में भी आप यही डाटा बुकलेट यूज करेंगे. डाटा बुकलेट से हम लोग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बट इफ we need this data in the questions in past paper in your coming exam, so this data booklet will not be provided, but whatever the data is required will be given with the question. Let's say he won't give you the complete table, but if he just need you to use the electronegativity of hydrogen and chlorine, तो वो लिख के दे देगा बस आपको. लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए तो हम यूज करेंगे ना, हम तो सीखेंगे. अब ये वैल्यूज पूरी नहीं देगा, क्या पता पूरा टेबल भी दे दे, क्या पता सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की उठा के दे दे. गॉट इट? ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड? Okay, so now these partial charges are known as dipoles. And why these partial charges come? वो हमने डिस्कस कर लिया. These partial charges are due to the electronegativity difference between these bonded atoms. So a chlorine atom is more electronegative than the hydrogen atom, so it keeps the shed product of electron more towards itself. So that's why chlorine atom has an incomplete or partial negative charge, whereas the hydrogen atom will have an incomplete or partial positive charge. Now, what is a dipole moment? See, due to these partial negative and partial positive charges, what happens? There is a polarity difference between a hydrogen atom and a chlorine atom. And the measure of this polarity in a covalent bond is known as dipole moment. You just have to remember this definition. सिर्फ याद रखो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इसको इंट्यूटिवली समझना थोड़ा सा मुश्किल है अनटिल और अनलेस मैं आपको डायपोल मोमेंट का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊं. लेकिन वो हमें एज पर आवर सिलेबस रिक्वायरमेंट उसकी डेप्थ ने हरगिज नहीं जाना है. तो डायपोल मोमेंट इज अ measure of polarity of a covalent bond between bonded atoms. For example, if we have two bonded atoms, if you see this pencil over here, at one end of the pencil we have a hydrogen atom and the other end has a chlorine atom. तो पता है क्या होता है? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो होता क्या है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है, अगर हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वैल्यूज को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट गिव्स अस द डायपोल मोमेंट. ठीक है, अब इसको मोमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज वी कंसिडर दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज रोटेटिंग अबाउट ईच अदर. ठीक है, but again you are not supposed to go into this depth. You just have to remember what dipole moment is, and basically you need to find in a molecule कि उसका resultant dipole moment क्या है. जैसे अगर मैं HCl molecule की बात करें तो उसका जो net dipole moment है, its direction would always be from positive to negative. Dipole moment is a vector quantity and vector quantity has a direction. We won't be dealing with the magnitude of dipole moments. इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू फाइंड दी पोलैरिटीज, चार्जेस की वैल्यूज, कूलम्स एंड इनटू द डिस्टेंस. सो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट बनता है ना, वो कूलम मीटर बनता है. बट हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, वी जस्ट हैव टू establish the directions of the dipole moment. इस मॉलिक्यूल में we have only one partial positive and negative charges, so the direction of the dipole moment should always be from the positive to negative. Dipole moment basically हर बॉन्ड का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो इसका एक ही डायपोल मोमेंट होगा. इफ यू सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका भी डायपोल मोमेंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा. हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव. इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी. अगर मैं आपको ऐसी एक रफ वैल्यूज दे दूं, लेट्स से इसके जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल को हम लोग ना इस तरह से, ये जो सिंबल बनाया हुआ है इससे रिप्रेजेंट करते हैं. केमिस्ट्री के लिए नहीं है ये सिंबल, आपको बस थ्योरेटिकली समझना है डायपोल मोमेंट. तो इसकी जो वैल्यू है वो अगर फॉर एग्जांपल 4 है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की वैल्यू जो होगी वो इससे बड़ी होगी. उसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन. हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पढ़े थे. अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. इफ यू कंसीडर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन, क्योंकि उसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है ना. Yes, of course. Dipole comes due to the electronegativity difference between the bonded atoms, and the dipole moment is due to the presence of dipoles. So indirectly, dipole moment is affected by electronegativity. So these values I am just giving you as a reference. These are not the actual values of their dipole moments.
just to make a comparison that the dipole moment value of hydrogen fluoride should be greater as compared to hydrogen chloride, because fluorine is more electronegative than chlorine atom. Got it? आगे बढ़े. Okay. Why do we have to study about these dipole moments? Because it decides whether the molecule is a polar or non-polar. A polar molecule is one which has a dipole moment which is not equals to zero, any value but not zero. And a non-polar molecule is a molecule which have a resultant dipole or net dipole moment equals to zero. What is mean by this? If any molecule has a net dipole moment of zero, it is considered to be a non-polar molecule. Non-polar molecule is like all alkanes are non-polar, and water is a polar molecule. And you know that polar and non-polar molecules, they do not mix with each other. You cannot mix oil and water. They are immiscible in each other. And why they are immiscible in each other? Because water is a polar molecule and petrol is a non-polar molecule because it is a hydrocarbon. It does not have resultant dipoles. Water molecule has resultant dipoles. In order to understand the polarity, we have to understand the dipole moments direction. पहली बात. दूसरी बात, polarity पढ़ने से फायदा क्या होगा? Polarity पढ़ने से we can understand about the solubility of molecules. Secondly, we can also understand about the melting point and boiling point of simple covalent molecules. So polarity affects both of these things, melting point and boiling points of the simple covalent molecule, whereas as well as the solubility of molecule. इसलिए पढ़ रहे हैं पोलैरिटी. और पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है? डायपोल मोमेंट डिसाइड करते हैं. अगर डायपोल मोमेंट जीरो है किसी मॉलिक्यूल का तो वो नॉन पोलर है. ठीक है. और अगर डायपोल मोमेंट आपका नॉन जीरो है तो वो पोलर है. तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और उनकी सॉल्युबिलिटी पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है. नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर पोलर में नहीं हो सकता. पेट्रोल कैन मिक्स वेरी वेल इनटू डीजल because both are non-polar molecules. But petrol cannot mix into water because water is a polar molecule. ठीक है. अब किस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे वो आगे चल के पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे वो आगे चल के पढ़ेंगे. पहले ये तो एस्टैब्लिश करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच मॉलिक्यूल इज अ पोलर और विच मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर. नाउ इफ यू सी वाटर, in order to decide the net dipole moment is just same as that of the resultant dipole moment. जैसे forces होती है ना resultant forces, वैसे ही उसको डील करेंगे हम लोग अभी. If you see a water molecule has a band shape. वाटर का क्या शेप है? हमने शेप्स पढ़े थे. वी नो दैट 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, L, BB, PP, T बायो. तो टू बॉन्डेड रीजन, टू बॉन्डेड पेयर, वन लोन पेयर. वाटर में टू बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर होता है ना. तो वाटर हैज अ बैंड शेप. वाटर मॉलिक्यूल हैज टू बॉन्डेड पेयर्स. अब इसमें भी बॉन्डेड पेयर्स की बेसिस पे हम डायपोल डिसाइड करेंगे. ऑक्सीजन इज obviously more electronegative than hydrogen. If you are not sure about it, you can see the data booklet. But oxygen is more towards right hand side in the periodic table. It has a greater nuclear attraction because its proton number is 8 and it has only 2 shells. However, hydrogen has just 1 proton, but its shell is also 1. Hydrogen में तो कोई shielding ही नहीं है. So for now, if you just do not have the idea about the electronegativity values, you can always use this Pauling electronegativity table to see oxygen is definitely more electronegative than hydrogen. So oxygen must have a partial negative charge, whereas both of these hydrogen will have a partial positive charge. To decide their dipole moments, you have to see each bond separately. If we see the bond between oxygen and hydrogen on the left hand side, the direction of the dipole moment is always from positive to negative. So in a water molecule, this dipole moment is from positive to negative. और दूसरे bond में we have another dipole which is again from positive to negative, from hydrogen to oxygen. So we have two dipole moments. If I just ask you about the values or the magnitude of these two dipoles, तो आपको क्या लगता है ये equal होगा या unequal होगा?
as both of the bonded atoms are same, bond between ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है लेफ्ट पे भी, और राइट वाला भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इनकी वैल्यू भी तो इक्वल होगी ना. Okay, Samair, good to hear that. Okay, you use our shortcut and it actually help you in the assessment and it will help you in your exams as well. ठीक है. I have a lot of many shortcuts जो मैं आगे आपको चल के बताता जाऊंगा. ठीक है जी. Now answer my question. So don't you think that these dipole moments should be equal in magnitude? उमर उमर ने बोला बहुत हो गई क्लास, बोर हो गई. तफरीक कहते हैं. उमर, डिड यू फाइनली गॉट द कैट? बिल्ली ले ली तुमने? Umar is saying he has got a new haircut and he wants to show to everyone. So Umar wants to open his camera. Is it right? आज माहीन भी प्रेजेंट है ऑनलाइन क्लास में. माहीन इज सेइंग, माहीन को मैं रोज कहता हूँ कि वो क्लास नहीं लेती, लेकिन माहीन ने आज क्लास ली हुई है. थैंक यू माहीन. अच्छा भाई, आगे बढ़े. सो इनको ना डायपोल मोमेंट को आप ऐसे डील करोगे जैसे फोर्सेस होती है. फोर्सेस अगर इस डायरेक्शन में है, तो क्या ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट करेंगी? मेरा आपसे ये सवाल है. डू यू थिंक दिस द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, लेट्स जस्ट से दीज टू फोर्सेस हैं, क्या ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट करेंगी? आंसर करना है सबने. एमन, ईमान, फातिमा, हसन, अब्दुल्ला, उमर, जुनैरा, जारा, उमैजा, अबीहा, मंतशा एंड सैमसंग SM A3 2F. सैमसंग नाम के बच्चे भी हैं भाई. यमुना, वजीहा. There will be a resultant. There will be a resultant. Ayman is saying they will cancel out each other. How would they cancel out each other? Ayman, if you see these two forces acting at a point, if you guys have studied the resultant or resolution of forces in AS level physics, अगर आपने physics में resolution of forces पढ़ लिया है, तो आपको पता होगा कि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे. या अगर आपने वेक्टर्स वगैरह पढ़ा है कभी, लेकिन ओ लेवल फिजिक्स में भी तो पढ़ते ही हैं इतना. There will be a resultant force because if we just resolute these forces into x axis and y axis, so both of these forces have one x component and one y component. Their x component will cancel out each other because they are acting in opposite direction. However, their y component, they are acting in the same direction, so they will add up to give you a resultant force, right? So they are not acting in the same direction. But if you have a object or a box, if you are applying the force in this direction and in this direction, so this box will be lifted upwards, right? So these two forces or these two dipoles will give you a net dipole moment, which must be in the upward direction like this. So if you are asked to draw the direction of the net dipole moment, it would be like this. This is our net dipole moment. So if any molecule has a net dipole moment, it is not equals to zero. Its value is not equals to zero. It means water is a polar molecule, right? आगे बढ़े. Now let's see another example of carbon dioxide. टेस्ट के मार्क्स पता नहीं चले आपको अभी तक? क्यों नहीं पता चले? आप लोगों को गूगल क्लासरूम का कोड नहीं मिला? लेट मी आस्क. अब ना बेटा, ए स्टूडेंट्स हैवंट गॉट योर टेस्ट मार्क्स. इनका गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड किया हुआ है. चलो.
नहीं मिला तो फिर सबको नहीं मिला होगा, या तो वो इन प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग होगा, और आमना हैज टू शेयर a classroom code with you, because this time she is uploading all the test papers on a Google Classroom. बहुत last time बहुत मुश्किल हुई थी, सब आगे पीछे हुआ था. So she gonna share a classroom code or link with you guys, then you can just download your checked copies from there. And we have I think a spreadsheet as well जिसपे सबके marks लिखे हुए हैं, and highlighted भी थे उसपे से किसका highest है किसका lowest है, तो सारी पकड़ होगी अभी सबकी. And when you get your test back, make sure you should get the feedback of the exercise. Okay, we have two people added on the group, Miss Uswa and Miss Amna. They both will provide you the feedback. If you need to ask any question regarding any question from the test, you can message these two associate teachers, or of course you can message me as well. आप मुझे तो कभी भी मैसेज कर सकते हो, बट थोड़ा सा मोबाइल सस्ता वाले ना टाइम लगता है रिप्लाई करने में मुझे, तो बट अब हम तीनों के मैसेज कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा. स्प्रेडशीट तो मेरे पास है अहमद, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ आपकी टेस्ट कॉपी मिलेगी. ठीक है, सबके सामने सबके मार्क्स रिवील नहीं करने होते हैं ना, अच्छी बात नहीं है. चले भाई, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का पहले शेप पता होना चाहिए, लीनियर शेप है. अब इस पे which atom is more electronegative, carbon or oxygen? You have to see both of these bonded pairs separately. If you see the data booklet, carbon has an electronegativity value of 2.5, oxygen has an electronegativity value of 3.5. So oxygen is more electronegative. It means both of these oxygen atom will have a partial negative charge and carbon will have a partial positive charge. तो इफ यू सी द डायपोल मोमेंट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. देखो सारे बॉन्डेड पेयर्स के अलग अलग डायपोल मोमेंट देखना है. राइट साइड पे जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसका अलग डायपोल मोमेंट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उसका अलग डायपोल मोमेंट होगा. सही है. तो इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल हैज डायपोल्स ओवर इट, कार्बन डाइऑक्साइड हैज डायपोल्स ओवर इट, बट if you see the direction of these dipoles, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ राइट साइड पर है और दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ लेफ्ट साइड पर है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू थिंक द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज डायपोल शुड बी इक्वल और नॉट? दे हैव सेम बॉन्डेड पेयर्स, राइट? दे हैव सेम बॉन्डेड एटम्स ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे? इक्वल होंगे, एंड दे आर एग्जैक्टली एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो क्या इनके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देगा इजिली? कर देगा ना एमन? Yes. No, no, not non-zero. It should be zero. Because these dipole moments have to be equal in magnitude. Why? Because the bonded atoms are same na, on both the sides. And they are exactly in opposite direction. Linear shape hai na, 180-degree apart. So it means they are exactly acting in opposite direction. So the resultant or the net dipole moment over it should be equals to zero. Despite having partial charges on a carbon dioxide molecule, it is considered to be a non-polar molecule. Why? Because the net dipole moment is zero. Got my point? Now let's see an example of CCl4 molecule. CCl4 molecule, if you draw the structure, it has carbon has 4 bonded pair and 0 lone pair, right? So if it has 4 bonded pair and 0 lone pair, it means its shape must be tetrahedral. So if you have to draw the tetrahedral shape to decide the net dipole moment, you cannot just decide by just seeing the structure. स्ट्रक्चर देखोगे तो गलती हो जाएगी. यू हैव टू सी द शेप. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से नहीं बनाते, अगर लेट से हम वाटर को इस तरह से बना देते, तो इसमें भी फिर आप कहते हैं कि वाटर जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर है, क्योंकि उसमें तो आप कैंसिल आउट कर देते हैं ना. कैंसिल आउट थोड़ी ना हो रहा है, वाटर का शेप ऐसा है ही नहीं. ठीक है, तो शेप बनाओगे सही तो ही डायपोल मोमेंट डिसाइड कर सकोगे. तो इफ यू सी a CCl4 molecule, it is a tetrahedral in shape. if you make the dipoles on this molecule, तो इसके जो डायपोल्स होंगे वो तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ठीक है, यू कैन चेक द वैल्यूज फ्रॉम डाटा बुकलेट. नाउ इफ यू सी दिस molecule, all chlorines are partial negative and carbon is partial positive. So if you have to draw the dipole moment direction from
फर्स्ट बॉन्ड कार्बन से क्लोरीन की तरफ शुड बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, कार्बन से क्लोरीन नेगेटिव, दूसरा फिर ये वाला डायपोल मोमेंट भी इधर, एंड द फाइनल डायपोल मोमेंट इज हियर. All of these dipole moments should be equal in magnitude. Would they cancel out each other? क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये पूछ रहा हूँ. अब इसके लिए ना आपको शेप बड़े ध्यान से देखना होगा. अब ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. देखने में तो पेज पे आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे तीन फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर एक फोर्स लग रही है, लेकिन ये शेप ऐसा थोड़ी है. ये तो पेज पे ऐसा बना हुआ है ना. इस शेप असल में कैसा है? अगर आप टेट्राहेड्रल शेप रिकॉल करो तो ये शेप ऐसा थोड़ी था हमारा. ये शेप कैसा था? वीडियो दिख रही है क्या? मेरे हाथ में मार्कर्स दिख रहे हैं. तो मैं आपको बताता हूँ ये शेप कैसा था. देखो, ये टेट्राहेड्रल शेप था. इट वाज लाइक दिस. ठीक है. इट हैज फोर बॉन्डेड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर. अब अगर आप इस शेप को देखो तो ये सिमेट्रिकल है बच्चे. इस सिमेट्रिकल इन शेप. मतलब अगर आप राइट वाले मार्कर पे फोर्स लगा रहे हो अपनी तरफ, ब्लू वाले मार्कर पे फोर्स लगा रहे हो, ब्लैक वाले मार्कर पे फोर्स लगा रहे हो, ग्रीन वाले मार्कर पे फोर्स लगा रहे हो, सो ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर अपोजिट, मतलब नॉट एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन. 3D में देखोगे तो अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, ये तो सेंटर में ही रहेगा ना, रिजल्टेंट फोर्स आएगी नहीं. हाँ, अगर आप उसको यूं करके देख रहे थे कि तीन फोर्सेस नीचे लग रही है, एक ऊपर लग रही है, तो ऑब्वियसली फिर रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाली फोर्सेस ज्यादा होंगी, ऊपर वाली कम होगी. लेकिन ये शेप ऐसे थोड़ी ना है. ये शेप ऐसे है. 3D में देखना है, ऐसे शेप है. मतलब अगर इसको इस तरह से इमेजिन करो, अगर मैं एक रिंग लूं, रिंग समझते हो ना, उस रिंग में इफ आई टाई अप फोर रोप्स एट फोर एजेस, तो और उसको मैं चारों तरफ से इस तरह से एक ही फोर्स से पुल करूंगा, तो वो रिंग बीच में ही रहेगा. ठीक है. तो ये जो सारी, आपने कैसे डिसाइड करना है बेटा? इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल इन शेप, अगर सिमेट्री है ना मॉलिक्यूल में, तो और अगर डायपोल मोमेंट फॉर एवरी बॉन्ड इज इक्वल, if a molecule is symmetrical but you have to see the symmetry in three-dimensional form, then all of the forces will be cancel out with each other. तो इसमें सारी forces cancel out हो रही हो. आई होप कुछ समझ आई ये बात. नो समाहे, हाइड्रोजन peroxide हैज अ डिफरेंट बॉन्डिंग. हाइड्रोजन peroxide की बॉन्डिंग जो होती है वो ये होती है, H2O होता है ना, इट इज लाइक दिस. और इसमें फिर आपके बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर होते हैं. मुझे याद दिलाना, क्लास के एंड में मैं हाइड्रोजन peroxide को डिस्कस करूंगा. सो this molecule has net dipole moment equals to 0. So this is a non-polar molecule. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ. H3O को भी देख लेते हैं अभी. इसमें मैं थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ. What if I just remove one chlorine atom and if I add one hydrogen atom? So would the dipole moment between carbon and hydrogen be the same? Hydrogen we know is more electronegative than carbon. We can see from the data booklet, hydrogen has an electronegative value of 2.1, carbon has an electronegative value of 2.5. Sorry, carbon is more electronegative than hydrogen. Okay? So if we see the bond between carbon and hydrogen, so in this bond, hydrogen is less electronegative. So hydrogen will have a partial positive charge and carbon will have a partial negative charge. कार्बन पे दो तरह के चार्जेस किस वजह से हैं? क्योंकि क्लोरीन की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो ओवरऑल चार्ज जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव सिर्फ एक बॉन्ड की वजह से है ना. तो ज्यादा इफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव का ही होगा जो क्लोरीन की वजह से. अगर चलो मैं कंसिडर कर भी लूं कार्बन पे दो चार्जेस हैं, तो हाइड्रो कार्बन और हाइड्रोजन का जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगी, राइट? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. देखो मैंने क्या किया है. हमने, अच्छा ये आपको स्क्रीन अगर नजर आ रही है, छोटी आ रही हो, देखो ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव. मैंने CCl4 था ना, उसमें मैंने एक क्लोरीन कम करके एक हाइड्रोजन लगा दिया. सारी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी अब इसकी. किस तरह से डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी? पहला वाला मॉलिक्यूल पोलर था,
क्योंकि सारे क्लोरीन थे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगने की वजह से ये जो डायपोल याले बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थी, कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट थी। तो ये जो फोर्स होगी ये डिफरेंट होगी, ये डायपोल मोमेंट डिफरेंट होगा, और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगी, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, whereas for carbon to chlorine it should be from carbon to chlorine, because कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन पार्शियल नेगेटिव है। सही है, हो जाती है बात। तो इसमें देखो, इसमें अब क्या हुआ है, इसमें हमने ये तीन क्लोरीन है, मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा के लेट से एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये जो कैप है ना ये हाइड्रोजन। अब इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस तरफ है, इधर इसकी है, इधर इसकी, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ, मतलब लेट्स से इफ आई कट इट अक्रॉस दिस मार्कर, तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा एटम आ रहा है हाइड्रोजन, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो पूरा मॉलिक्यूल जो है वो नीचे तीन क्लोरीन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो इससे जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे जा रहा है, बाकी ये वाले डायपोल मोमेंट इधर जा रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो इसमें एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। So here net dipole moment is not equals to zero. Hence the molecule should be a non-polar molecule. CCl4 polar था, ये non-polar है. Oh, why I am saying it a non-polar? It's a polar molecule. Sorry, it's a polar molecule. ऊपर वाला non-polar था, sorry, ये polar है. My bad, ये polar है. ठीक हो गया? मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश नहीं करना है कोई भी, होगा, बन सकता है, हम नहीं करेंगे ना। ठीक है भाई, क्वेश्चंस देखें इसके पास पेपर्स में कैसे आते हैं। ओके समाहिर बेटा, एक्चुअली जब हमने CCl4 बनाया था ना, तो दैट शेप वाज टेट्राहेड्रल। इफ यू सी अ टेट्राहेड्रल शेप, इफ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ टेट्राहेड्रल शेप, तो इसमें मॉलिक्यूल जो है ना आपका, इसमें जो फोर बॉन्डेड पेयर्स हैं, जो फोर बॉन्डेड पेयर्स के साथ जो बॉन्डेड एटम्स है वो सारे सेम है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सबकी इक्वल है, और वो सारे क्योंकि अवे ही जा रहे हैं इससे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इफ यू सी इट, इसको किस तरह से आप किसी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो, जैसे मैंने रिंग वाली एग्जांपल दी थी ना, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास ये एक बॉटल है ना, इस बॉटल पे अगर मैं ये जो इसका ये हैंडल है, इस हैंडल पे मैं अगर यहाँ पे एक रोप टाई करूँ, एक रोप यहाँ पे टाई करूँ, एक रोप यहाँ से टाई करूँ, एक रोप यहाँ से टाई करूँ, एंड इफ आई जस्ट पुल all of these ropes at once or with the same force, तो as these are symmetrical in shape, तो every direction has equal force, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बट इफ आई एम ड्रॉइंग CCl3 मैंने एक बॉन्ड ही हटा दिया ना, मतलब मैंने एक रोप जो है उस पे जो बंदा है ना वो कम फोर्स लगा रहा है, बाकी तीन ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी ना। इसी तरह हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से डिफरेंट है, इनफैक्ट उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बाकी डायरेक्शन में आ रही है, तो वो अवे जा ही नहीं रही। देखो इसमें अगर ये था ना, ये सारे अवे फोर्स लग रही थी, एक बंदा जो है वो ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो ये तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकती ना। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। गॉट इट समाहिर? आप माइक खोल के पूछ सकते हो बेटा, इतना चैट पे अगर नहीं लिखा जा रहा तो माइक खोल लो। समाहिर, yes they are in different directions na, that's why they how would I say, they are in different directions but they are collinear forces। कोलिनियर समझते हो? कोलिनियर क्या होता है?
कोलिनियर इज, अगर मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स यूं लगा रहा हूँ और एक फोर्स यूं लगा रहा हूँ एंड एक फोर्स यूं लगा रहा हूँ, तो दे ऑल आर 120 डिग्रीज अपार्ट। इस पे अगर 5 न्यूटन फोर्स है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स है, तो बेसिकली ये सारी एक दूसरे को ना कैंसिल आउट करेंगे कंप्लीटली। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने फोर फोर्सेस की बात की है, तो जो फोर्थ फोर्स है ना, वो बेसिकली आपकी इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज आ रही है। तो इसलिए हम 2D पे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं इसको समझने में। क्वेश्चंस में मोस्टली प्लानर पे क्वेश्चंस खत्म कर देता है वो अपने। जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं ना, पास्ट पेपर्स देखते हैं क्या पूछता है। विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल। ओवरऑल डायपोल अगेन इज दी, जिसको मैं नेट डायपोल मोमेंट कह रहा हूँ, उसने उसको ओवरऑल डायपोल मोमेंट कह दिया। नाउ इस क्वेश्चन में, अच्छा, if we have two carbon atoms bonded to each other, they will have zero electronegativity difference between them, it means इन पे तो कोई डायपोल नहीं होगा ना। कार्बन और हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। बट इफ वी सी दिस मॉलिक्यूल, इसमें CH3 है। अब इस CH3 के साथ तो वी विल हैव मैनी मोर हाइड्रोजन एटम्स, और वो भी डायपोल इनके काउंट करने पड़ जाएंगे। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस तरह से अगर करेंगे तो। ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो कि चलेगी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में। कार्बन एंड हाइड्रोजन, although they have a electronegativity difference between them, carbon has a greater electronegativity than hydrogen, बट हम ना, इनके जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है ना, मतलब डायपोल मोमेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन is very small, so we can assume it to be zero, while solving for नेट डायपोल मोमेंट या ओवरऑल डायपोल मोमेंट। ये एक्चुअल में जीरो नहीं है डायपोल मोमेंट, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं इस पे। लेकिन एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न, इफ यू जस्ट कंसिडर दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन won't have any dipole moment, so you do not have to worry about it there। आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द ट्रिक दैट आई एम टेलिंग यू, एंड दिस विल ऑलवेज वर्क। But for rest of the other, if two atoms are same, if two bonded atoms are same, तो उस पे तो डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली जीरो है ना, उस पे तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही नहीं आ रहे। हम कार्बन और हाइड्रोजन के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी जीरो ही है, क्योंकि इतने कम है कि इसको अज्यूम करके चलोगे भी ना तो गलती नहीं होगी। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहे कि अगर कार्बन हाइड्रोजन पे आपने पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करना है, तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देख के डिसाइड करेंगे। बट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न, तो आप इस मेथड से करेंगे, सब सही होगा। जैसे अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में वी हैव कार्बन, जो बॉन्डेड पेयर्स हैं कार्बन कार्बन के, तो कार्बन कार्बन वाले जो बॉन्डेड पेयर्स हैं उन पे तो डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं ना, तो उसको तो आप छोड़ दें, कार्बन हाइड्रोजन को भी छोड़ दें। तो दिस मॉलिक्यूल वी कैन से कि ये, मतलब रिलेटिवली बाकी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ये नॉन पोलर तो मैं नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि मुझे वैसे बेसिकली ये नॉन पोलर, ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर ही होते हैं। वो क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बहुत कम है। तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग ऑल ऑफ दीज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो CH3 में भी होंगे, तो हम इनको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में अज्यूम करेंगे कि कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, while solving for overall dipole moment। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स ऑप्शन बी, कार्बन कार्बन का तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा ना। वी हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ द नेट डायपोल मोमेंट वुड बी इक्वल्स टू राइट टू लेफ्ट। कार्बन कार्बन को तो डायपोल मोमेंट है नहीं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में तो बनाएंगे नहीं, तो इस मॉलिक्यूल में एक ही डायपोल मोमेंट है, वही ओवरऑल डायपोल मोमेंट है। इन ऑप्शन सी वी हैव कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। If we see carbon chlorine bond, chlorine is more electronegative than carbon, तो chlorine पे partial negative, carbon पे तो है ही partial positive। तो there is one dipole moment between carbon and oxygen, जो कि right to left होगा।
एंड टू डायपोल मोमेंट्स फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, जो कि इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अब इनको, क्या ये इक्वल हैं? अब इनको आप कोलिनियर इसलिए नहीं कैंसिल आउट करोगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। कार्बन क्लोरीन के डायपोल मोमेंट की वैल्यू अलग होगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कार्बन क्लोरीन में डायपोल जो है वो डायपोल वन डायपोल टू ये वन वन है, और कार्बन ऑक्सीजन की अलग होगी। यू कैन नॉट जस्ट से कि डायपोल मोमेंट वन डायपोल मोमेंट वन इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट टू। आप ये थ्योरेटिकली देख के तो नहीं बता सकते ना सिर्फ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देख के भी आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए तो आपको डिस्टेंस भी चाहिए। तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करनी है वैल्यू एक्चुअली, राइट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए। इन क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज मंतशा नहीं देगा। You have to realize that chlorine is more electronegative than carbon because it is more towards right hand side of the periodic table. However, you can say that chlorine is also down the group as compared to carbon. So for now, I would recommend that whenever you are doing these questions, make sure you just always look the electronegativity values from the data booklet, so ताकि आपको याद हो जाए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2022 से पहले का है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको मिलना स्टार्ट हुई हैं, दे हैव स्टार्टेड गिविंग यू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज in the data booklet after 2022. Previously, there used to be no electronegativity values in the data booklet, and we just had to decide by ourselves which atom should be more electronegative than the other atom. So we used to remember the trend of electronegativity is that across the period, electronegativity values increases and down the group it decreases. So as for carbon and chlorine, so we had to actually sort of remember the electronegativity, the relative electronegativity कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। वैल्यूज हम याद नहीं करते थे ना, आप याद करेंगे। But let's say if this question shows up and if you just take the electronegativity of chlorine wrongly, तो भी इसका आंसर सेम बनेगा। Anyways, what I need to ask you that whether these dipole moments of carbon chlorine would exactly cancel out carbon oxygen dipole moment, you cannot say for sure. You cannot say whether it would cancel out or not because you do not know the values. But whatever the dipole moment would be there, आपको पता है कि जो resultant dipole moment ऑप्शन सी में आएगा, would it be bigger as compared to ऑप्शन बी or not? बस मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। देखो फोर्सेस की तरह देखो ना, ऑप्शन बी में फोर्स लग रही है, लेट से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। ऑप्शन सी में वी हैव अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन जो कि कार्बन ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ फोर्सेस इधर भी तो हैं। अगर आप लेट से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गलत भी ले लेते और इसको फोर्सेस यूं भी कर देते तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। बट वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके जो फोर्सेस है यूं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इनका रिजल्टेंट ऑप्शन बी का वो ज्यादा होगा या कम होगा? वो ऑब्वियसली कम होगा बिकॉज 5 न्यूटन फोर्स विल बी कैंसल आउट बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ दीज डायपोल मोमेंट्स। इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे कार्बन क्लोरीन के वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सम अप होके 5 न्यूटन की फोर्स को या लेफ्ट वाले डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट तो करेंगे ना कुछ ना कुछ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सम अप होके इससे बड़े ना हो जाए। अगर बड़े भी हो जाते हैं तो ये 5 इससे कैंसिल आउट ही होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो कैंसिल होगा। तो थ्योरेटिकली वी कैन से दैट दी डायपोल मोमेंट जो ज्यादा होगा वो ऑप्शन बी में होगा, सी में क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिलिंग हो रही। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में कार्बन कार्बन के बीच में तो देखना नहीं है, कार्बन क्लोरीन के बीच में देखेंगे। अब ये दोनों डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली इक्वल भी होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो इस पे तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऑप्शन ए में भी हमने नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो कंसिडर किया हुआ है। बी और सी में से, सी में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है डायपोल तो कुछ ना कुछ कैंसिलिंग कर सकते हैं। बी में जो है वो सिर्फ एक ही डायपोल मोमेंट है और सी में भी वही वाला डायपोल मोमेंट है जो कहीं ना कुछ पार्ट उसका कैंसिल आउट हो रहा है। इट मीन्स कि लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल ऑप्शन बी में होगा। हसन, समझ आई बात?
एक और क्वेश्चन देख लें इसका। हाँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक वेक्टर्स वेयर दे आर एक्टिंग लाइक वेक्टर्स एंड blah blah। अच्छा, क्वेश्चन 104 जो है ना, वो देखने में सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है। इसमें भी वो लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल मोमेंट पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बता दो। इसमें भी हैव क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एंड दे ऑल आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल है ना, ये वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेम डायपोल मोमेंट होगा, बॉन्डेड एटम सेम है। तो इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा, दैट वुड बी जीरो। बी में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी नेट डायपोल मोमेंट की। कितनी होगी वो नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। इसी तरह ऑप्शन सी में भी देखो वही काम हो रहा है कि कैंसिलिंग हो रही है, तो इसमें भी कोई नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी लेकिन बी से छोटी होगी। और ऑप्शन डी में तो भी है कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप है, तो इसमें अच्छा ये शेप बना के दिया हुआ है उसने, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अगेन आंसर इज बी। समाहिर। why it's not C? Because if you see molecule C molecule C, इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट ये है। ठीक है, इसको अपनी मर्जी से कोई फोर्स की वैल्यू देना चाहो दे दो, नहीं अभी देना चाहो इट्स ओके। कार्बन क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो ये है। इसमें अगर आप दो फोर्सेस यूं बनाए, और ऑप्शन बी में सिर्फ जैसे इसको ना मैं एग्जाम वैल्यू दे रहा हूँ 5 न्यूटन, ऑप्शन बी में सिर्फ एक ही फोर्स है 5 न्यूटन की डायरेक्शन। तो आपको क्या लगता है कि रिजल्टेंट वैल्यू किसकी छोटी होगी? सी की छोटी होगी, तो इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट लार्जेस्ट तो नहीं होगा ना। अभी हाँ, समाहिर। वाई कार्बन इज नॉट पॉजिटिव? कार्बन इज पॉजिटिव। कार्बन तो पॉजिटिव ही है ना। द राइट वन। I mean, why it has, because oxygen is more electronegative than carbon. So with respect to oxygen, carbon must have a partial positive charge. Similarly, chlorine is also more electronegative than carbon. So with respect to chlorine, the bond between carbon and chlorine must have a partial negative charge. क्योंकि कार्बन क्लोरीन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Can hydrogen be negative? Yes. If you bond hydrogen with something which has a lesser electronegativity than hydrogen, so yes, it would have. Let's say if you bond hydrogen with boron, or hydrogen with aluminium, और हाइड्रोजन विद सिलिकॉन, सिलिकॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसमें सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन वुड बी पार्शियल नेगेटिव, सिलिकॉन वुड बी पॉजिटिव। ये बनेगा डायपोल मोमेंट। आई बात समझ? मार्क्स रामीन, मैं अभी लेट मी आस्क आमना। जो आमना इज द वन हु, आपके पास शायद नंबर नहीं होगा आमना का। हाँ, इफ यू गाइस नीड टू आस्क फॉर फीडबैक्स, तो आई कैन जस्ट सेंड यू दी आमना's contact details. She is added on the group already.
So you just feel free to message her if you need anything about feedback. But मैं टेस्ट पेपर का जरा अभी पूछ लेता हूँ कहाँ तक रह गए. Ahmed, what will be highly appreciated? Okay. Someone was asking me about carbon and if you see this question here, they have already given you the electronegativity values, and they are just asking you to make the dipoles. They have given you the bond of between carbon and hydrogen and silicon and hydrogen. If you see the electronegativity of hydrogen is 2.1 greater than silicon. I say yeah, electronegativity values are slightly maybe different from the data booklet. So they just keep changing the electronegativity values from when they send you the updated version. उसमें कोई slight changes आ जाते हैं. Ionization energy में भी change आ जाते हैं. बट चेंज आ जाता है मतलब वो और एक्यूरेट वे में कैलकुलेट जैसे साइंस करती जाती है तो कैम्ब्रिज अपडेट करता जाता है इसको. Okay, so silicon has a partial positive charge, hydrogen has a partial negative charge. Why? Because hydrogen's electronegativity value is greater than silicon. It is 2.1, silicon is 1.8. Similarly, a bond between carbon and hydrogen, carbon has 2.5 electronegativity, hydrogen is 2.1. So carbon is partial negative. And he is saying why methane has no overall dipole moment, because methane has a tetrahedral shape. Although it has a dipoles, but as that shape is tetrahedral, so dipoles cancels out each other. And these are only few questions that they have asked you about dipoles in the last 20 years. If you see all the papers from the last 20 years, there are only few questions from the dipoles. And almost every type of question we have covered in today's class. So you won't be stuck in coming questions. तो वो आपको कोई ऐसा नहीं होगा फंस जाओगे ऐसे ही आएंगे. ठीक है. चलो.